Hello students, today we will learn first chapter of grammar, that is nouns. I think you will have a question ki ma'am, what is noun? So in this video you will understand what is noun in detail. First of all, I want to tell you about noun in detail, that how can you learn this chapter easily. Okay, so for you I made this so you can learn noun easily. Noun is a name of a person, place, animal and things. These four things you have to learn. What? Noun is a name of a person, place, animal and things. Here you can see in the category of a person, I have written doctor, nurse, teacher, Raj and Rani. So these all are the names of a person, right? Doctor, even you can add lawyer, then painter, many more you can add here. My name is Sejal. So we all are person. Now we will understand place. Hospital, school, bus station, park, post office, garden. These all are the names of places. Okay. Animal. In animal category you can add names of insect and birds as well. For example, cat, butterfly, dog, parrot, and peacock. These all are the names of animal. Now, things: fan, TV, book, pan, bag, ruler, then compass box, your tiffin box. You can add so many things you can see around you. So, what I want to tell you that noun is a name of a person, place, animal and things. A noun is a name of a person, place, animal and things. The other name of a noun is a naming word. जैसे आपको घर पे पेरेंट्स आपके दूसरे नाम से बुलाते हैं, वैसे ही यहाँ पर नाउन का दूसरा नाम है, क्या है? नेमिंग वर्ड. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन डिटेल. Here you can see so many examples. First, read these sentences. My grandmother lives in the village. Grandmother. It is a name of a person. अब आपको माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भी मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी सेंटेंस है उसमें नाउन कौन कौन से है, कैसे पता चलेगा? इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रैंड मदर. सो ग्रैंड मदर है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, तो यानी कि ये नाम है, इट इज़ अ नेमिंग वर्ड. विलेज, विलेज भी क्या है? इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह का नाम है. सो ये भी क्या है? नेमिंग वर्ड है, और यू कैन से नाउन. द बॉय हैज़ अ कैट. बॉय और कैट, बॉय है, इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, एंड कैट इज़ अ नेम ऑफ एन एनिमल. The bottle is on the table. Bottle and table, they both are the names of things. So, the words in bold are naming words. जो यहाँ पर आपने highlighted words देखे थे, they all are naming words. Naming words are also called nouns. जैसे मैंने आपको बोला ना कि दो इसको हम nouns भी बोलते हैं और naming word भी बोलते हैं. So, what do you understand? What is noun? A noun is the name of a person, place, animal or thing. अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर आपकी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, वी कैन सॉल्व one by one all the exercises, and by solving this exercise you will be able to learn what is noun. Okay, so let's solve the first exercise. Exercise number A. Complete these sentences with the correct words from the box.
tiger, vase, girl, shell, basket, apple. You can see that these all are the naming words. अब देखिए बच्चों, I picked a dash on the beach. बीच पे आप जाते हो तो आप समंदर के किनारे या फिर वहाँ से आप क्या इकट्ठा करते हो, सेल लेते हो ना, जिसको हम गुजराती लोग क्या बोलते हैं, जैसे छिपला है, शंख है, हम ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ इकट्ठा करते हैं ना. सो आई पिक्ड अ शैल ऑन द बीच. द डेज वॉज डूइंग हर होमवर्क. कौन यहाँ पर आप क्या चूज करोगे बच्चों? देखिए, जैसे कि द गर्ल वॉज डूइंग हर होमवर्क. द बॉय सो अ डैश इन द फॉरेस्ट. जंगल है तो आप किसको देखोगे? ऑब्वियसली टाइगर को. द बॉय सो अ टाइगर इन द फॉरेस्ट. ओके बच्चों. देन सी इज ईटिंग एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट. क्या खा रही है उसने ब्रेकफास्ट में? क्या खाया? एप्पल. माई सिस्टर ब्रॉट फूड इन अ बास्केट टू द पिकनिक. वो फूड किस में लेके वो जा रही थी? बास्केट में उसने लिया. द वेज फैल फ्रॉम द टेबल. आप देखते हो ना, फ्लावर पोट होता है जो टेबल से फैल माने गिर गया. अब एक्सरसाइज नंबर बी हम देखेंगे, जैसे कि अंडरलाइन द नाउन्स इन दिस सेंटेंसेस. आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपको उसमें से नाउन्स यानी कि नेमिंग वर्ड को आइडेंटिफाई करना है. और वो आप कैसे कर पाओगे? आपको पूछना है कि ये पर्सन का नाम है या प्लेस का नाम है या एनिमल है या थिंग है. ये 4 कैटेगरी में अगर कोई एक भी कैटेगरी में वो आता है, इट मीन्स वो नाउन है, यानी कि वो नेमिंग वर्ड है. जैसे कि इधर आप देख सकते हो बच्चों. फर्स्ट आई वांट टू जूम दिस क्योंकि आपको अच्छे से दिख पाए. अब देखिए यहाँ पर, द गर्ल प्लेज ऑन द स्विंग. तो गर्ल आप सबको पता है विच कैटेगरी में आप उसको शामिल करोगे. ऑब्वियसली पर्सन में. स्विंग माने झूला. जो गर्ल है वो झूला खा रही है, यानी स्विंग है क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ अ थिंग. Our teacher took us to the book fair. Teacher is the name of a person and book fair, it is the name of a place. टीचर हमें कहाँ पर लेकर गई? बुक फेयर. ओके, वहाँ पर लेके गई. नेक्स्ट सेंटेंस वी विल सी. माई ब्रदर इज मेकिंग ब्रेकफास्ट. मेरे भाई ने बनाया. क्या बनाया? ब्रेकफास्ट. तो ब्रदर एंड ब्रेकफास्ट बोथ आर द नेम्स. My grandfather cannot find the newspaper. Grandfather is the name of a person. Newspaper is the name of a thing. So by this, आपको बस ऐसे ही सोचकर आपको क्या करना है? नेमिंग वर्ड में अंडरलाइन करती जानी है. He was reading a book in the library. So book and library both are the names of things. ओके सॉरी, बुक इज़ द नेम ऑफ अ थिंग एंड लाइब्रेरी इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी जाती है. आप सबको पता होगा हमारे स्कूल में भी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है. द वुमन वॉज रीडिंग अ लेटर. वुमन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन एंड लेटर इज़ द नेम ऑफ अ थिंग. वुमन यानी कि एक लेडीज है, वो क्या पढ़ रही है? एक लेटर पढ़ रही थी. नाउ वॉज रीडिंग अ लेटर. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. राइट दिस वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम. ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है जो आपको बहुत मज़ा आने वाला है. मैं लास्ट में आपको ये PDF बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं पहले से बताऊंगी तो आपको पता नहीं चलेगा. सो मैं आपको इतना ही शेयर कर रही हूँ. तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए. यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 कैटेगरीज है, जैसे कि पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. हमें यहाँ पर ये सारे नाम ही हैं. दे ऑल आर द नेमिंग वर्ड्स. हमें कैटेगरी में उसको देखना है कि कौन सी कैटेगरी में ये फिट बैठेगा. जैसे कि बास्केट है, तो आप किसकी कैटेगरी में लिखोगे? ऑब्वियसली थिंग्स, क्योंकि बास्केट इज द नेम ऑफ अ थिंग. गर्ल को कौन सी कैटेगरी में लिखोगे? पीपल की कैटेगरी में. स्कूल इज द नेम ऑफ अ प्लेस. मैट है तो मैट आप कौन सी कैटेगरी में लिखोगे? थिंग्स. गोट क्या है बच्चों? एनिमल की कैटेगरी में हम लिखेंगे इसको. बिस्किट तो वो खाने की चीज़ है, थिंग्स के बारे में आया. हनी भी थिंग्स है. हॉस्पिटल इज अ नेम ऑफ अ प्लेस. विंडो इज अ नेम ऑफ अ थिंग.
Brother is a name of a people. Parrot is a name of, मैंने जैसे बोला था कि भी birds है, animals है, insect है, जिसको हम animals की कैटेगरी में ही रखेंगे तो parrot भी animal की कैटेगरी में आएगा. Jasmine is a name of a flower. So हम इसको things के कैटेगरी में रखेंगे. Pudding is also a name of thing, खाने की चीज़ है. Snake, once again it is a name of an animal. Museum, जिसको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? ऑब्वियसली यू ऑल आर राइट, हम इसको प्लेस की कैटेगरी में रखेंगे. टाइगर, चलो सोचो किसकी कैटेगरी में आप रखोगे? ऑब्वियसली इन एनिमल. गोरिला, आपको पता है कि बड़ा जो बंदर है जिसको हम क्या बोलते हैं? गोरिला. डॉक्टर, डॉक्टर भी आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे? पीपल. टीचर भी पीपल. ऑरेंज यहाँ पर कलर का नाम नहीं है, यहाँ पर ऑरेंज माने फ्रूट्स का नाम है. तो फ्रूट्स यानी कि थिंग्स, खाने की चीज़ें, या वो चीज़ें होती है, थिंग्स में आएगा. लाइब्रेरी इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस. अंकल ऑब्वियसली पीपल में. गिटार इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग. स्टेग में आपको बच्चों बताओ कि स्टेग किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? डियर को. हिरन को हम क्या बोलते हैं? स्टैग. ओके, तो वो भी एनिमल की कैटेगरी में आएगा. बटरफ्लाई, बटरफ्लाई आप कौन सी कैटेगरी में रखोगे? इंसेक्ट भी आता है एनिमल की कैटेगरी में. टुलिप इज अ नेम ऑफ फ्लावर, सो थिंग की कैटेगरी में. हॉल, आपके घर का जो बड़ा एरिया होता है जहाँ पर आप, जिसको आप क्या बोलते हो? ड्राइंग रूम भी बोलते हो और हॉल भी बोलते हो, जिसको हम रखेंगे प्लेसेस की कैटेगरी में. बुक स्टोर, इट इज़ ऑल्सो इन द, इट कम्स इन प्लेसेस, यानी कि इसमें आएगा. सिप थिंग्स में. ईगल इज़ अ नेम ऑफ एन एनिमल, मीन्स है तो बर्ड, बट ये कैटेगरी में हम इसको फिट करेंगे. मदर पीपल. बस स्टॉप प्लेसेस. बेकर, आप सबको पता है कि आप बेकरी में जाते हो जहाँ पर क्या मिलता है? ब्रेड मिलती है, फिर आप अलग अलग टाइप की केक खाते हो. वो कौन बनाता है? बेकर. जो आप किसकी कैटेगरी में लिखोगे? पीपल में. तो अब मैं आपको आंसर शो कर रही हूँ. क्यों मैंने पहले नहीं किया था? क्योंकि फिर आप है वो डायरेक्ट लिखते और सोचते नहीं. ओके, सो हियर यू कैन सी ब्रदर, डॉक्टर, टीचर, अंकल, मदर एंड बेकर, जो आएगा पीपल की कैटेगरी में. प्लेसेस की कैटेगरी में स्कूल, हॉस्पिटल, म्यूजियम, लाइब्रेरी, then whole, bookstore and bus stop. Here in the category of animals, got parrot, snake, tiger, gorilla, stag, butterfly and eagle. और थिंग्स की कैटेगरी में बास्केट, मैट, बिस्किट, हनी, विंडो, जस्मिन, पुडिंग, ऑरेंज, गिटार, tulip and sip. Now the last exercise of this chapter we will understand. Exercise number D. Complete the sentences with the help of picture clues. जैसे कि ये किसका पिक्चर है? मुझे पता है आप सब एक्साइटेड हो कि कब ये कोविड यहाँ से टाउन में से और हमारे इंडिया में से और पूरे वर्ल्ड में से जाएगा और आप सब जल्दी से कम बैक कर सको, स्कूल पे आ सको. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ स्कूल. डेज गेट्स ओवर एट 5 PM इन द इवनिंग. आप सबको पता है हमारे स्कूल में बड़े बच्चे हैं, उसका डे स्कूल होता है, वो 5 बजे घर पे जाते हैं. सो ये किसका पिक्चर है? स्कूल. सो बाय द हेल्प ऑफ द पिक्चर वी विल गेट द आंसर. एंड ये सारे नेमिंग वर्ड है. स्कूल इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस. सो द स्कूल गेट्स ओवर एट 5 PM इन द इवनिंग. ये किसका पिक्चर है बच्चों? यस, यू ऑल आर राइट. इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ बुक. द बुक, द बॉय बॉट. बॉट माने इट इज़ अ पास्ट वर्ब ऑफ बाय, खरीदना. The boy bought a book from the store. We saw a joker at the circus. ये किसका पिक्चर है? जॉकर का.
Joker is the name of a person. The girl is wearing a hat. ये क्या है? Hat का picture है. The zebra has black and white stripes. आप सबको पता है कि zebra को black and white stripes होते हैं, right? ये किसका पिक्चर है? His cousin was flying a kite in the evening. अब जो लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको सेंटेंस लिख कर दिए हैं, बट आप दूसरे भी सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हो कोई भी आपकी एक्स्ट्रा नोटबुक में. मेक सेंटेंसेस विद दिस नाउन्स. ये नाउन दिए जैसे कि हाउस, तो आप ये भी लिख सकते हो कि आई हैव अ बिग हाउस या माई हाउस इज़ ब्यूटिफुल. यहाँ पर अवर हाउस इज़ बाय द रिवर ऐसे कुछ लिखा है. देन प्ले ग्राउंड, द चिल्ड्रन प्ले इन द प्ले ग्राउंड. और आप दूसरा भी कोई सेंटेंस आप अपने आप से बनाना चाहते हो, यू कैन प्रैक्टिस इट इन द एक्स्ट्रा बुक. फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ राज, या यू कैन राइट आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, आई लव टू मेक फ्रेंड्स, etc etc. Nest, the birds live in the nest, और I saw a nest of a bird. ऐसे कुछ भी आप बना सकते हो. गिफ्ट, दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू. ये गिफ्ट आपके लिए है. शॉप, माई फादर हैज़ अ शॉप. तो इस टाइप के आप सेंटेंसेस आप अलग भी अपने आप से बना सकते हो. सो आई होप you understand this chapter well. So please watch this video properly, and please try to solve the exercise by yourself, okay, and watch it 2-3 times. So please, till then, bye bye, take care.